My dear brothers and sisters, once again, welcome to Sur Sangam Reflections from Jaipur. I am Father Edward Oliveira, as usual, coming to you with a reflection on the third Sunday of Easter. We have seen several ways by which the risen Lord had met his disciples. Today we have a unique experience of the disciples. The same disciples had met Jesus long ago, and they were all fishermen. Coming then, there was Peter, there was John, and others, perhaps practically all of them. And then at that time, they had encountered Jesus when they were all fishermen, and they had followed him. And after following him, they had seen his greatness, they had experienced him. But something happened, and by which he was killed. Yes, they had believed in him, but now they were dejected because things were not the same. They felt as if they were anath. In other words, no one was with them. And today we see that Peter takes his friends and says, well, let us go fishing once again. We had left our boats, we had left our nets, but what else can we do? Because we know only one thing, how to fish. It is then that they encounter Jesus for the second time now. Because when they go for the fishing, they do not get that adequate amount of fish which they usually used to get. They were experts, no doubt. But today they are a failure. And they are more dejected than ever. It is then Jesus tells them, my friends, did you get anything? And then John recognizes he is the Lord. But he says nothing. And then he says, well, if you didn't get much fish, go and put on the right side. They do so, and there is a large haul of fish. So much, they are not able to pull the nets too. But then the real encounter follows. First, Jesus makes a breakfast for them with the fish that he had caught. He shares his life with them, and then slowly he meets Peter. And now begins that deeper encounter, whereby he asked Peter, Peter, do you love me? And Peter says, yes, Lord, I love you. Okay, he says, feed my sheep. Then again, Jesus says, Peter, do you really love me? Peter, of course, is a little surprised that he should ask this question. Yes, he says, I do love you. You know it. But when he asks for the third time, do you love me? Then he feels a little pain. For he knows that he had loved Jesus. Maybe he had failed him once or twice, but his love was intact. And then Jesus says, well, do what I say. Feed my sheep, feed my lamb. मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार ऐसा व्यक्ति था जिसने एक बहुत सुंदर स्त्री से उसने प्यार किया था और उनका जीवन इतना सुगमय था, उनका मैरिज लाइफ जो कहते हैं कि किसी और के समान नहीं था। लेकिन क्या हुआ, उस औरत को एक स्किन डिजीज हुआ और वो जो इतनी सुंदर थी, धीरे धीरे उसका सुंदरता खत्म होने लगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, उसके पति को एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में ऐसा हुआ वो देख नहीं पाया, वो ब्लाइंड हो गया। और इस प्रकार उनका जीवन चलता रहा, क्योंकि वह ब्लाइंड होने के नाते, अंधा होने के नाते वह उस स्त्री को नहीं देख सका जो अब इतनी सुंदर नहीं थी जैसे पहले थी। दिन प्रतिदिन उसका जो चमड़ी का जो रूप रंग सब बदल रहा था, लेकिन उनके बीच में जो प्यार था वो कभी खत्म नहीं हुआ और जिंदगी चलती रही। बहुत साल के बाद उसकी वाइफ जो है वो अस्वस्थ हो गई और मर गई। उसके बाद किसी ने उससे कहा, अच्छा हुआ आप बिल्कुल देख नहीं पाए और इस प्रकार आपने अपने पत्नी को नहीं देखा, क्योंकि वह उतना सुंदर नहीं थी जितना पहले थी। लेकिन उसके पति ने कहा, देखो मेरा कभी भी एक्सीडेंट में मेरा खत्म नहीं हुआ था, मैं देख पा रहा था। मैंने क्यों ऐसा किया, मैं मेरे पत्नी को जानना नहीं चाहता था कि वो जान जाए कि मैं उसको देख सकता हूँ। अगर ऐसा होता तो उसको अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने केवल प्रिटेंड किया कि मैं एक ब्लाइंड हूँ, मैं अंधा हूँ, मैं अंधा नहीं था।
ताकि हमारा प्यार बरकरार रहे। प्यारे भाई और बहनों, प्यार क्या है? प्यार वह नहीं है कि हम किसी वस्तु के लिए प्यार करते हैं, सुंदरता के लिए प्यार करते हैं। नहीं, प्यार एक अंदरूनी चीज है, जहां पर एक लगाव होता है, एक रिलेशनशिप होता है। और यही बात प्रभु आज पीटर से करते हैं। पीटर, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? और पीटर थोड़ा गड़बड़ा जाता है, लेकिन प्रभु कहता है, अगर आपको मेरा मिशन चलाना है तो मुझसे आपको प्यार करना होगा, तभी आप कर सकते हो। प्यारे भाई और बहनों, मैं एक फादर हूं और मेरे समान बहुत सारे सिस्टर्स हैं, बिशप्स हैं। हम सभी प्रभु के मिशन में हैं और आप लोग मुझे सुन रहे हो, आप लोग भी ऐसे हो जो प्रभु के मिशन में एक हो गए हो। और कभी कभी क्या होता है कि हम केवल अपने मिशन के बारे में सोचते हैं, प्रभु के बारे में नहीं सोचते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मिशन सही हो, इसलिए बहुत प्रयास करते हैं, काम करते हैं, लेकिन जब मिशन कभी फेल हो जाता है तो वैसा हो जाता है जैसे पीटर को हुआ था, जैसे उनको कोई फिश नहीं मिला था और हम बहुत ही डिजेक्टेड हो जाते हैं, हमें कोई वो उत्साह नहीं रहता जो होना चाहिए। लेकिन प्यार में जब हम डूब जाते हैं, प्रभु को हम अपनाते हैं, प्रभु को प्यार को पाते हैं, तब हमारा जीवन उससे मिलन हो जाता है। और इससे क्या होता है, हमारा जीवन कभी खत्म नहीं होता, प्यार दिनों दिन बढ़ जाता है, चाहे हमें सक्सेस हो या ना हो। इसी के लिए प्रभु ने उसको बुलावा दिया था और उससे एनकाउंटर किया था और पूछा था बार बार, क्या तुम प्यार करते हो, है कि नहीं? या वो प्यार नहीं केवल आउटर प्यार है, एक अंदरूनी प्यार, जिससे न केवल तुम मुझे चाहते हो, मेरे मिशन को भी चाहते हो, मिशन को तुम जान जाते हो। प्यारे भाई और बहनों, कोई भी काम हम करें, अगर हम प्यार से नहीं करेंगे तो हम दिल से नहीं कर सकते हैं। जब हम दिल से करते हैं, चाहे हमारा सक्सेस हो या फेलियर हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम उस प्यार को चाहते हैं, उस काम को चाहते हैं। इस बात को हमें खास तौर पर हिंदू में सोचना पड़ता है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो शुरुआत में उनका प्यार बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे को चाहते हैं, कि धीरे धीरे उनका प्यार खत्म हो जाता है, तो केवल वो रह जाते हैं साथ और कुछ भी और नहीं रहता है। यही हम पति पत्नी के बीच में भी देखते हैं, एक परिवार में भी देखते हैं, समाज में भी देखते हैं। इसीलिए जीवंत प्रभु जो है आज हमसे पूछता है वही प्रश्न जो उसने पेतरुस से पूछा था, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझे चाहते हो? क्या तुम मुझे, मेरे मिशन को जानते हो? क्या मेरे लिए काम करने के लिए तैयार हो? वो हंसकर और मृदु हंस देकर वो हमसे पूछता है। प्यारे भाई और बहनों, आइए इसके लिए जवाब हमें देना होगा। और जब हम प्रभु को पाते हैं, वह उमंग, वो उत्साह किसी और को हम बता नहीं सकते हैं, केवल हम अपने दिल से जानते हैं हमारे मिशन में कभी फेलियर नहीं होगा। और फेलियर होगा तो भी हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ हैं और हमेशा रहेगा। वही प्रभु है जो पुनर्जीवित है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।